Good morning to one and all present here. Today we all have gathered here to celebrate 7th International Yoga Day. The day is marked to raise awareness of the many benefits of yoga. Indian yoga, which is practiced in its various forms, is slowly gaining popularity across the globe. The COVID 19 plight is not just a physical crisis, it has also left lasting impacts on mental health, with many left in psychological suffering, depression, and anxiety. Dealing with the pandemic necessitated restrictions and loss. Scientific research has proven that yoga can help reduce stress levels, increase awareness, build immunity, and strong physical and mental health, along with helping regularize the systems of the body overall. This year, the theme, Yoga for Well-being, is much relevant for our times in a society still recovering from the impact of the COVID 19 pandemic. I invite Ms. Seema Jarrett, our school principal, to extend her welcome and share her views on essence of yoga relevant to these times. We welcome you, ma'am. Ma'am, Thank please. you, Vandana. Am I audible? Yes, ma'am. Thank you. So, good morning to all of you, our parents, teachers, and students who make up our DLF family. I can see that the attendees continue to increase, and greetings to all of you on the occasion of International Yoga Day that not just celebrates India's ancient physical, mental, and spiritual practice yoga, but also the many benefits of practicing yoga as a way of living. Yoga and mindfulness have been an integral part of life at DLF Public School. But during the COVID pandemic, its popularity has grown multifold across the world. We have all experienced how the restrictions of the lockdowns and confinement to home have turned work life balance upside down and put enormous pressure on people's physical and mental well being, particularly with all outdoor sports out of bounds. And many across the world have found their answer in yoga and meditation. Today, we invite you to take to your mats, to your yoga mats, to calm your minds and lift your spirits. Let the practice of yoga work on your body, your mind, your emotions, your energy. You know, our human body is designed such that it can take care of us. It can do everything for us, but it cannot take care of itself. It is our responsibility to value our human body, care for it, and ensure that it is healthier, fitter, and more energetic every day. And yoga can do this for us. So let's allow yoga to let you discover oneness with yourself, with the world, and with nature. I pray that everyone in the DLF family embrace a healthy lifestyle. Let every day be yoga day for you and your families. Wishing you days of mindfulness, inner calm, and well-being at all levels. Thank you for joining in. Thank you, ma'am. So, as we are about to start, it's a gentle reminder to everyone to spread your yoga mats and sit in a comfortable position. And as we prepare for this session, let us have a quick glimpse how yoga has become an integral part of everybody's life at DLF.
We need to find inner peace within, and yoga makes it possible. I now welcome Ms. Gagandeep Kaur, our coach for the day. She's a yoga professional with more than 15 years of experience in different verticals of yoga and a recipient of Yoga Ratan Samman from Government of Uttar Pradesh on the occasion of 4th International Yoga Day. She has been mentoring Delphite teachers and students for so long, and under her guidance, our Delphites have won several accolades. I welcome you, Ms. Gagandeep Kaur. Over to you now. And I think we would request everyone to pin Gagandeep ma'am to their screen so that you can see the postures properly. We'll switch off the cameras. Sure. So please pin her screen for better visibility and follow her. Wish you a happy yoga session. नमस्कार, आप सभी को मेरा बहुत प्यारा सुबह का नमस्कार. And thank you so much, Vanna ma'am and Principal ma'am and everyone here to attend this session. Today, I'm Gagandeep Kaur. I'm taking your yoga session on occasion of International Yoga Day. आप सभी को मालूम है कि हमें योग करना चाहिए, हम लोग की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. तो आज मैं आपको आपकी डेली की रूटीन से हटकर थोड़ा सा योग के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको आप लोग अगर कहीं ना कहीं समय निकाल के करें तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. आप सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, मुझे पिन कर लें, फिट टू फ्रेम कर लें, ताकि आप मुझे आसानी से आराम से देख सकें. I think I'm audible, Vandana ma'am? Yes, Gagan ma'am. Thank you, ma'am. Yes, everybody sit straight on floor. आप सभी को अपने मैट पे सोना है. मैं सुखासन में बैठ रही हूँ. जो ऐसे नहीं बैठ सकते हैं वो अपने कंफर्टेबल किसी भी पोज में बैठ सकते हैं. आप लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं. This is the most easiest pose. Put your one leg like here and another on up like this. Okay, one and knees are straight down. सबसे पहले मैं आपको बैठने का ही तरीका बताऊंगी. जो हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं उसमें हम सेट नहीं कर पाते हैं. Yes, one main thing is this: how to sit straight. आपकी जो बैक है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ आप कैसे एकदम सीधे बैठ सकते हैं. ठीक है, आपको अपनी बैक को सबसे पहले सीधा करना है, जो हमारी बैक है, और उसके बाद जो हमारे चेस्ट से नीचे का जो हिस्सा है उसे थोड़ा सा सीधा करना है, जिससे हमारी कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी. ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसा सोचिए कि यहाँ नाभि के पास एक जिप है जिसे आपने नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ बंद करना है, जिससे आपका ये एरिया सीधा हो और आपका स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए. तो सबसे पहले सीधे बैठे, शोल्डर स्ट्रेट. आप हिप बोन के ऊपर आ जाइए. जो आपकी हिप की बोन है आप फील करेंगे तो आपको हल्की सी नुकीली बोन फील होगी, जिसपे आप प्लेस करेंगे अपनी हिप. एंड उसके बाद यहाँ से लेके लंबा सांस लें और जैसे जिप बंद करते हैं ऐसे करके हल्का सा खींचे और आप फील करेंगे आपका बैक और स्ट्रेट हो गया. ठीक है, अगर किसी को इसमें भी बैठने में अगर प्रॉब्लम है तो जो हमारे पास छोटा सा घर में पिल्लो होता है या कुशन होता है या फिर कोई लकड़ी का फट्टा, उसको प्लेस करके भी आप आराम से उस पर बैठ सकते हैं ताकि आपकी कमर सीधी हो. ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट सिटिंग पोजीशन that is most important to do every pranayam, breathing exercise. That's it. हाँ जी, आप सभी को मैं आज जो शुरू कराने जा रही हूँ, this is the my session is divided in 5 sections. सबसे पहले breathing exercise, okay, जिसमें मैं आप सबको आज प्रणव उच्चारण कराने जा रही हूँ. आप सभी ने ओम उच्चारण किया होगा. This is प्रणव उच्चारण to divide the little bit higher version of your ओम उच्चारण. ओम चैंटिंग को थोड़ा सा हाफ ले जाते हैं, तो दिस इज प्रणव उच्चारण. इसमें हमने तीनों फॉर्म्स को आ, ओ, म को कंबाइन करना है, डिफरेंट लेवल्स पे ले जाते हैं.
ठीक है। आफ्टर दैट वी आर डूइंग प्राणायाम। सबसे पहले आज मैं आपको कपालभाति कराऊंगी। आप सभी ने कपालभाति किया होगा, पर इसकी भी लिटिल बिट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बस दैट्स इट। आप सबको आता है, पर थोड़ा सा तरीका बदल दिया है। उसके बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम, ठीक है। तो मैंने आपको 2 सेक्शंस बता दिए हैं। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन अदर। अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी प्लेस करिए, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। अपनी फिंगर और थंब को ऐसे और फिंगर सीधी, बस ध्यान रहे आपकी पाम फ्लोर की तरफ नहीं, अपवर्ड होनी चाहिए। कमर बिल्कुल सीधी, चेस्ट एंड थोरेसिक बोन, आपकी चेस्ट पूरी ओपन होती हुई, बैक बिल्कुल सीधी, हैंड्स ऑन योर नीज। धीरे से अपनी आंखों को बंद करिए और गहरा सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। जी, अभी आपको ध्यान रखना है, हमने सबसे पहले अ का उच्चारण करना है। साउंड आ, कहाँ से? आपके स्टमक से। आपने साउंड क्लियर होना चाहिए, आपके स्टमक पे पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। और आप लंबा सांस लेने के बाद अ का साउंड निकालना है 5 टाइम। रेडी? स्टार्ट करेंगे। डीप इनहेल एंड स्टार्ट। Deep inhale, start. Deep inhale, start. Deep inhale. Last, one more time. ये था आपका अ उच्चारण, अकार, जो हमने अपने स्टमक से साउंड को निकाला है। ये आपकी पूरी बॉडी को काम करेगा। जो दिन भर आप बहुत स्ट्रेस में, अब बहुत ज्यादा वर्किंग लोड के साथ हैं, और कई लोग हैं जो बहुत बीमार थे, रिकवरी पीरियड में हैं। दिस इज द रिलैक्सिंग एंड बिल्कुल आपको शांत कर देगा ये। And after that we will come to O, Okar, ठीक है। This is done Akar, now Okar, A, O, M, ठीक है। Okar sound will come from your stomach only, but आपका concentration आपके chest पे होगा, ठीक है। अब हम 3 करेंगे, ठीक है। You have time, you can increase this period, repetitions of the sounds. आप इसको 5 to 10 भी लेके जा सकते हैं, 3, 5, 8, 10 like this. You can increase your number of the उच्चारण. Now we will start O, ठीक है। लंबा गहरा सांस लेंगे and start करेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे। यस, अब आपने ध्यान रखना है, हमने सूत्र को सूत्र से मिलाना है। लाइक एक कड़ी को हमने मिलाना है। हमने आकार किया, ओकार किया। नाउ वी कंबाइन दिस कड़ी, अकार को ओकार से मिलाना है, ठीक है। तो नाउ वी कंबाइन ट्वाइस अ एंड ओ, क्लियर।
and out. Listen clearly and then you do with me like this. Deep inhale. श्वास लंबा होना चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कोई कमर पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपकी हिप बोन स्ट्रेट होगी तो यू डोंट फील एनी पेन एंड एनी स्ट्रेस बैक. क्लियर? अब आपने फिर से लंबा गहरा सांस लेना है. एंड नाउ स्टार्ट करेंगे. लंबा गहरा सांस लेंगे और दोनों को मिलाते हुए एक बार और लंबा गहरा सांस लेंगे. स्टार्ट करेंगे. ये थ्राइस, अकार एंड ओकार. ठीक है. अब हम आते हैं मकार पे. हमने शांत करना है अपने पूरे चक्रास को, तो हम अकार से ओकार पे आए, ओकार से मकार पे जाएंगे. तो पहले 3 राउंड्स ऑफ म. आपको वाइब्रेशंस को फील करना है, आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है इन वाइब्रेशंस में. आपकी पूरी बॉडी लीन हो जानी चाहिए. जो आपकी म की हम की साउंड है उसको बिल्कुल आपने अपनी पूरी बॉडी में मर्ज करना है. लंबा गहरा सांस लेंगे. लंबा गहरा सांस लेंगे. फिर से गहरा लंबा सांस लेंगे. जब आप म की साउंड निकालेंगे तो आप फील करेंगे आपके हर बॉडी पार्ट में वो वाइब्रेशन आपकी बॉडी को रिलैक्स कर रही है बिल्कुल. अब हमने आकार, ओकार एंड मकार को कंबाइन करना है, सूत्र से सूत्र को मिलाना है. ठीक है. हमने यहाँ नाभि से शुरू किया था, आकार, ओकार एंड देन मकार. अब इसको कंबाइन करेंगे 3 राउंड्स में. लंबा गहरा सांस लेंगे और शुरू करेंगे. फिर से गहरा लंबा सांस लेंगे. One more round, deep inhale. बिल्कुल खुद को रिलैक्स छोड़ दीजिए. कमर को झुकाना नहीं है. रिलैक्सिंग का मतलब है अपने पाम्स को रब करिए. थिंक पॉजिटिव. अपने आप से कहिए आप बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, आप बिल्कुल लाइट फील कर रहे हैं. पाम्स को अच्छे से गर्म करते हुए अपनी आंखों के ऊपर रखें एंड थिंक पॉजिटिव. आपको अपनी जब भी आप मेडिटेशंस करें या प्राणायाम करें तो अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट जरूर रखें. रब करते हुए आंखों पर रखें और अपनी आंखों को, अपनी आंखों के पीछे अपने ब्रेन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए. पाम अच्छे से रब करते हुए आंखों पे लगाते हुए
लंबा गहरा सांस लें, धीरे 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 आंखें खोल दें, अपने भगवान, अपने इष्ट को धन्यवाद करते हुए इस दिन की शुरुआत करिए। और मैं आप सभी से की शुभ मंगल स्वास्थ्य का कामना करती हूँ प्रभु से। हाँ जी, ये था हमारा प्रणव उच्चारण, ठीक है, जो आप सभी ने मेरे साथ किया। फील रिलैक्स, आपका ब्रेन, आपका मन, आपका शरीर सब शांत हो गया। दिस इज, आप ये कभी भी दिन में कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, जब आप बहुत हैवी फील ना करें, खाना खाने के तुरंत बाद ना करें, बस जब आपको लगे कि आपका मन बिल्कुल मन कर रहा है अभी कुछ करने का नहीं, तो डू दिस प्रणव उच्चारण। इसे प्रणव उच्चारण कहा जाता है। इसमें हम प्रणव उच्चारण में हमने सब की सब अपनी शांत इंद्रियों को शांत कर दिया, हम बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं, ठीक है। नाउ आई विल टीच यू कुछ, मैं आपको कुछ ऐसे सेशंस में कुछ ऐसी बातें बताती जाऊंगी जो आपकी बॉडी को रिकवर करती जाएगी, आपका इम्यून गुड करेगी। तो जो हम करने जा रहे हैं, कपाल भाती प्राणायाम। ये प्राणायाम कपाल भाती, आप सभी को मालूम है, कपाल हमारे ब्रेन एंड भाती जो कुछ शाइन करता है, तो ये हमारे ब्रेन, आईज, बॉडी, स्टमक, हर बॉडी पार्ट को बहुत ज्यादा ब्लड का फ्लो करता है और उसको फिट करता है। तो इसे हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसे मैंने डिवाइड किया है। आप लोग जब कपालभाति करते हैं, लंबा श्वास लेते हैं और स्ट्रोक छोड़ते हैं। तो सबसे पहला सिंपल राउंड है, वैसे ही करना है आप सबने। ध्यान से करिए, हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं और ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें। पर बस याद रहे, आपका स्पाइनल पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो आपका ब्लड का फ्लो है वो आपके पूरे मस्तिष्क में और पूरे शरीर में आपको रिलैक्सिंग दे। तो याद रहे, हाथों की पोजीशन ऐसे, गहरा लंबा सांस लेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक सेकेंड, लंबा गहरा सांस लेना है आपको, और स्टॉक्स को लेने में ध्यान नहीं देना है, आपने सिर्फ सांस छोड़ने में ध्यान देना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, गहरा लंबा सांस लेना है और अपनी नासिका से उसे छोड़ना है, ठीक है। दोबारा से ध्यान रखें, लंबा गहरा सांस लेना है और 25 स्ट्रोक्स करेंगे, ठीक है। कितने स्ट्रोक्स करेंगे, 25। लंबा गहरा सांस लीजिए, स्टार्ट करेंगे। अपने पेट की तरफ ध्यान रखें, पूरा श्वास छोड़ देना है अंत में, ठीक है। तो आप एक हैंकी या टिश्यू पेपर कुछ ना कुछ जरूर रखें कि जो भी आपके नोस्ट्रल से इस पैसेज में म्यूकस या फिर कुछ भी आपको, आपका वॉटरी कुछ भी होगा वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो कोविड है, आपको मालूम है, ये आपका स्टार्टिंग एरिया यहीं से है, यहाँ से ये म्यूकस बनते बनते हमारे माउथ, नेक और फिर चेस्ट और लंग्स में जाता है। तो हम जब ये प्रयास करते हैं तो हमारा ये वाला पैसेज बिल्कुल क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, लंबा गहरा सांस लेना है, डीप इनहेल करेंगे। अभी मैंने आपको 25 स्ट्रोक्स दोनों नोस्ट्रल से कराए हैं। अब आपने क्या करना है, अपनी राइट नोस्ट्रल को बंद करना है और सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रल से यूज करना है। स्ट्रोक सेम चलेगा जैसे भी आप कर रहे थे, स्टमक की मूवमेंट सेम चलेगी, फिंगर को रख सकते हैं, थंब को रख सकते हैं। आपने अपना राइट नोस्ट्रल क्लोज करना है, क्लोज किया। सबसे पहले लंबा गहरा सांस लेंगे, क्लोज करेंगे और आंखें बंद, स्टार्ट करेंगे।
जो लास्ट है उसमें पूरा श्वास छोड़ देंगे। ठीक है, हो सकता है आप पहली बार कर रहे हो तो करने में थोड़ी सी तकलीफ हो, पर अभी आप इसे समझ के बाद में करें तो ताकि आपको ये समझ में आए। पर इस बीच में बिल्कुल कोई भी तनाव या कोई भी ऐसी सोच आपके मन में नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए आसन को करिए। अब मैंने क्या किया, हमने अभी राइट बंद किया, नाउ वी आर लेफ्ट क्लोज। अपना लेफ्ट नोस्ट्रल को मैं बंद करूंगी और राइट नोस्ट्रल से मैंने इनहेल करने के बाद स्टॉप छोड़ने हैं। ठीक है, डीप इनहेल करेंगे, क्लोज करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आप स्ट्रॉक छोड़ते हैं तो आपके ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा तेजी से आपके बॉडी में जाता है, तो आपकी बॉडी में कहीं अगर तनाव या कोई दर्द है उसकी तरफ ध्यान लगाएं तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये था इसका तीसरा चरण। अब जाते हैं चौथे चरण पे। आपने क्या करना है, लंबा गहरा सांस जैसे आप पहले ले रहे थे वैसे ही लेना है और स्टॉकिंग करनी है। पहले अब क्या करना है, पहले हमने लेफ्ट से छोड़ना है। ठीक है, तो हम कैसे चलेंगे, लेफ्ट से छोड़ा, बंद किया, लेफ्ट राइट से छोड़ा, सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना है, लेने पे नहीं। तो हर बार स्ट्रोक छोड़ेंगे और हर बार पोजीशन चेंज करेंगे। पहले लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से। तो उसका अपोजिट नोस्ट्रल बंद होना चाहिए, हम उसके अपोजिट नोस्ट्रल को बंद करते जाएंगे और खोलते जाएंगे। थोड़ा सा फास्ट प्रोसीजर है, पर जब आप करेंगे तो इसको फील करिए, तो आपका ये पूरा पैसेज देखिए क्लीन हो रहा है। ध्यान रखें, नोस्ट्रल पोजीशन आप ऐसे बना सकते हैं, थंब को ऐसे, फिंगर्स को ऐसे रखते हुए। तो मैंने पहले राइट बंद किया है, पहले लंबा सांस लेते हुए लेफ्ट से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, लंबा गहरा सांस लीजिए, स्टार्ट करेंगे। पूरा श्वास छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, लंबा गहरा सांस लेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ देंगे। ठीक है, ये आप अगर अभी भी कोई कोविड के लिए परेशान है या कोविड से ग्रस्त है या अभी भी आइसोलेशन में है, तो ये प्राणायाम सी एक्सरसाइजेस करने से आपका मोरल तो बूस्ट होगा ही, आपका ऑक्सीजन लेवल भी हाई होगा, आपकी लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ेगी। जो भी मैं एक्सरसाइजेस बता रही हूँ ये आपके बिल्कुल टोटली लंग्स पे भी इफेक्ट करेगी। ठीक है, ये था मेरा प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। ठीक है जी, फर्स्ट सेशन ब्रीदिंग, सेकंड इज कपालभाति प्राणायाम। अब मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताने जा रही हूँ जो आपके लंग्स, आपकी चेस्ट, आपके ब्रीदिंग सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ माइक्रो एक्सरसाइजेस करेंगे जो आपके वक्ष क्षेत्र को, आपके लंग्स को, आपकी चेस्ट को एक्सपैंड करेंगी, जिसमें आपके लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी। अगर आप लोगों के पास ऑक्सीमीटर है, इफ यू वांट टू ट्राई, यू कैन ट्राई राइट नाउ। यूज योर ऑक्सीमीटर, check your oxygen level, and after that you all are doing these asanas. Immediate after that again check your oxygen level, definitely it will increase it. Okay, अभी हम लंग्स कैपेसिटी, लंग्स स्ट्रेंथनिंग की माइक्रो एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। आप जहाँ बैठे हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, सीधे खड़े होना है आपको। ठीक है जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वरना में आवाज आ रही है मेरी? देखिए, आपने हाथों को सीधा रखना है और सीधे खड़े होना है। आपके पैर जुड़े होंगे, सीधे खड़े होंगे। सबसे पहले आप अपने हाथों को यहाँ रखें, ठीक है, और गहरा लंबा सांस लेंगे और हाथों की मूवमेंट अब जाएगी ऐसे। ठीक है, सिंपल
बार आपने अपने हाथों को पीछे लेके जाना है, एल्बोज बिल्कुल सीधी और अपने गर्दन को कोई मूवमेंट नहीं देनी है। रेडी, स्टार्ट करेंगे। गर्दन को गोल, बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं देना है, हाथों को पीछे की तरफ खींचते हुए लंबा सांस लें और रोक के रखें और धीरे से वापस आ जाए। एक बार और करेंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार और करेंगे, लंबा सांस लेते हुए खींच के रखें, रोक के रखें और धीरे से वापस आ जाइए। ठीक है, जब आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे तो यू डेफिनेटली फील इजीली, आपकी चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन होगा। यहाँ से जो आपका लंग्स है, नीचे का हिस्सा वो पूरा ओपन हो रहा है। ठीक है, आप सेकंड राउंड में आप अपने हाथों को सामने जोड़िए, सीधे ही खड़े रहना आपने। अगर आप बिल्कुल पैर जोड़ के खड़े नहीं हो सकते तो थोड़ा सा गैप मेंटेन रख सकते हैं। सीधे हाथों को रखिए, लंबा गहरा सांस लेंगे एंड अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएं। कोशिश करें आपके हाथ जुड़ जाए, जो कि मुमकिन नहीं है, पर हम ट्राई ऐसे ही करेंगे। पीछे की तरफ बिल्कुल प्रेशर देते हुए हाथों को वापस आ जाए। अब फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे और पीछे की तरफ खींचते हुए कम बैक। एक बार और करेंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे कम बैक। ठीक है, ये हमारा फ्रंट चेस्ट, फ्रंट लंग्स ओपन हो रहा है, इसमें हमने अपना फ्रंट ओपन किया है ऐसे। ठीक है, अब हाथों को यहाँ जोड़िए नीचे की तरफ। ठीक है, अपने थाइस के सामने यहाँ लंबा गहरा सांस लेंगे और हाथों को पीछे की तरफ जोड़ते हुए ट्राई करते हुए कि जुड़ जाए, और जो भी जुड़ेंगे नहीं। लंबा गहरा सांस लेंगे धीरे से फिर वापस आ जाएंगे। फिर से करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, रोक के रखिए यहीं और धीरे से वापस आ जाइए। वन मोर, लंबा गहरा सांस लीजिए, डीप इनहेल एंड कम बैक, वापस आ जाइए। ये थी आपके वक्ष क्षेत्र के लिए माइक्रो एक्सरसाइजेस जो टोटली आपके लंग्स को वर्क करेंगी। तो हमने अभी क्या किया, सबसे पहले अपना सबसे निचला हिस्सा, जो आपके लंग्स का निचला हिस्सा है, उसे ओपन किया। फिर हमने अपने सामने छाती वक्ष के सामने के हिस्से को एक्सपेंड किया। अब उसके बाद हमने अपने दिस अपर हिस्से को एक्सपेंड किया। तो जो हमारा लंग्स का एक्सपेंशन है बहुत ज्यादा इसमें होता है। ये एक्सरसाइजेस आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। इवन जब आप ऑफिस वर्किंग है या आप अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तब भी बीच में माइक्रो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। यू हैव 15 मिनट ब्रेक, यू कैन डू दिस एक्सरसाइजेस। आप इसके नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको 3 सेट कराया है, आप 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ब्रीदिंग का ध्यान देना है। जब आपके हाथ ऊपर की तरफ जाए तो लंबा गहरा सांस लें और हाथों को पीछे की तरफ खींचें। तो आप फील करेंगे आपका पूरा लंग्स जब नीचे की तरफ मुड़ा रहता है। जब हम ऐसे बैठे रहते हैं तो हम सिर्फ अपर इतने हिस्से में सांस लेते हैं, आपके लंग्स प्रॉपरली इनहेल कर ही नहीं पाते हैं। तो आप अगर कोशिश करें, अगर आप चेयर पे हैं तो भी ट्राई करें आप हिप बोन पर ही बैठे। मैं अभी आपको चेयर की कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी तो आपको उसमें समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं आपको कराने जा रही हूँ गोमुख आसन। ठीक है, गोमुख आप सभी को मालूम है, गो और मुख, गो हमारा गाय माता के नाम से है, जो सबसे शांत जानवर है ना, बिल्कुल शांत। उसी तरह से हमने अपनी बॉडी को बिल्कुल शांत करना है, इसे कहते हैं गोमुख आसन। जब हम पहले आप सीधे बैठ जाइए, अपने पैरों को सीधे करते हुए कमर को सीधा करिए और आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी राइट लेग को फोल्ड करना है नीचे की तरफ
और फिर अपनी लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, आपने अपने राइट हैंड को फोल्ड करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को पीछे से लेके जाएंगे और ऐसे करके पीछे क्रॉस बनाएंगे, ठीक है। तो करिए, ऐसे पकड़ना है और ये जो आर्म है आपकी बिल्कुल आपके कान के पीछे जानी चाहिए। सामने की तरफ रखें, लंबा गहरा सांस लें और धीरे से छोड़ दीजिए। सेम प्रोसीजर आपको अपने दूसरे पैर से करना है। फोल्ड करेंगे, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे और कोशिश करें ये दोनों आमने सामने रहे। एक बात और, अगर आप ऐसे नहीं भी बैठ पा रहे हैं तो भी आप इनको थोड़ा सा लूज रखते हुए भी बैठ सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप इन्हें जोड़कर बैठेंगे, ऐसे जोड़िए, बैठिए। अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाएं और राइट हैंड को ऊपर लेके जाएं और लेफ्ट हैंड से पकड़े और बाजू को पीछे की तरफ खींचते हैं। रिलैक्स, ठीक है। ये आपके इधर की जो एक्सपेंशन है उसको कंप्लीट करेगा। दिस इज गोमुखासन, जो आपके पूरे स्ट्रेंथ, आपके लंग्स को और स्ट्रेंथ देगा, आपकी बॉडी को, आपके शोल्डर हिस्से को यहाँ से भी एक्सपेंशन मिलेगा प्रॉपर, ठीक है। दिस इज गोमुखासन, ओके। अब मैं आपको इसके बाद बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट आसन इज शशांक भुजंग आसन, ठीक है। ये आपके पूरे चेस्ट को एक्सपेंशन देगा और बिल्कुल रिलैक्स करेगा। ध्यान से देखिए, मैं साइड से लेटने जा रही हूँ। सबसे पहले वज्रासन में बैठते हुए इस तरह से बैठ जाइए, ठीक है, और बॉडी को आगे की तरफ बेंड कर दीजिए। दिस इज शशांक आसन। अब इसी पोजीशन में मैं भुजंग आसन करूंगी और फिर शशांक आसन में जाऊंगी। उसे कहते हैं शशांक भुजंग आसन, ठीक है। इसमें आपने देखिए, ध्यान से देखिए, मैं पहले शशांक आसन में हूँ। अब मैं अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेके जाऊंगी, पर उससे पहले मुझे कहाँ रुकना है, यहाँ, देखिए ऐसे। और अब मैं इसी तरह से अपनी बॉडी को बेंड कर दूंगी, ठीक है। नीचे की तरफ लेके जाते हुए ऐसे आप लेके आते हुए और फिर से बॉडी को इस पोजीशन में रोकेंगे। छाती में पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करिए और फिर बेंड हो जाएंगे नीचे। इसे आप 2 से 3 बार, 4 बार भी कर सकते हैं। एक्सपेंड करेंगे ऐसे और फिर लेट जाएंगे नीचे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए और फिर से नीचे। ठीक है जी, ये था आपका लंग्स का सेशन, ठीक है, जिसमें हमने अपने लंग्स की स्ट्रेंथनिंग की है। मैंने आपको सिर्फ वही मेन बातें बताई हैं जिसे आप कभी भी थोड़ी देर के लिए करेंगे और यू गेट बेनिफिट, डेफिनेटली यू गेट बेनिफिट। नाउ आई विल कम टू योर बैक, ठीक है। बैक पे आते हैं। दिस इज माय फोर्थ पार्ट। आपकी जो बैक है, स्पाइनल कोड, आप लोग लैपटॉप, फोन, आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन वर्किंग है, जिससे हमारी स्पाइनल बैक, पूरी स्पाइनल कोड की मैं एक्सरसाइज आपको कराने जा रही हूँ। आपको इसमें ध्यान रखना है, जो आपकी बैक है, जब आप मूवमेंट करें तो आपको ध्यान रखना है कि आप ब्रीथिंग्स पे बिल्कुल ध्यान दें। डीप इनहेल करें और डीपली एक्सहेल करें, ठीक है। तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ आपको। पूरा एक कोर्स है इसका, जो आप, जिनको सर्वाइकल है, माइग्रेन है, शायद की दिक्कत हो, वो भी आपको रिलीज करेगी इसमें, ठीक है, जिससे आपका पूरा बैक रिलैक्स रहेगा। ओके जी, वी विल स्टार्ट आवर सेशन लाइक दिस। अभी आप ध्यान से पहले देखें, मैं आपको सबसे पहले आपकी लोअर बैक पे, फिर आपके हिप पे और देन आपके चेस्ट और देन आपके शोल्डर। इसको धीरे धीरे लेके आऊंगी। स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको ऐसे बैठना है, ठीक है। आपका जो हिप है, आपका जो नी है, आपके हिप के नीचे रहना चाहिए। आपके पीछे पैर टोटली रिलैक्स। आपका हैंड आपके
नहीं होनी चाहिए। आपका शोल्डर बिल्कुल आपके हीप, ये वाला हिस्सा बिल्कुल 90 एंड ये वाला हिस्सा बिल्कुल 90 होना चाहिए। सिट लाइक दिस, ठीक है। गर्दन को सामने रखना है। पूरे प्रोसेस में आपने कहीं भी गर्दन पे प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी इस लोअर पे, दिस इज माय लोअर बैक, ध्यान रखिए, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं सिर्फ इसको नीचे लेके जाऊंगी और देन इसमें मेरा कोर भी वर्क करेगा। कोर को अंदर लाऊंगी, ये नीचे गया और फिर ये ऊपर आया। तो सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लीजिए लंबा और फिर सांस को छोड़ना है, ठीक है। 3 टाइम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, रेडी। लंबा गहरा सांस लेंगे, हिप को डाउन करते हुए, अपनी बैक को डाउन करते हुए लंबा गहरा सांस छोड़िए और अंदर। अभी इसमें गर्दन में कोई मूवमेंट नहीं होगी, नेक को बिल्कुल रिलैक्स रहने दे। फिर से गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस छोड़ दें। गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ दें, ठीक है। ये था आपका बैक, कंसंट्रेशन पूरा यहाँ होना चाहिए। अब आते हैं आपके हिप ज्वाइंट पे। हिप पे आपने क्या करना है, लंबा गहरा सांस लेना है और हिप को एक्सपेंड करना है पीछे की तरफ और फिर आगे की तरफ आना, ठीक है। ध्यान से देखें, दोबारा से देखें, ध्यान से देखिए। हिप को एक्सपेंड करना है, बैठना नहीं है, ठीक है। दिस इज एक्सटेंशन और फिर कम बैक, ठीक है। लंबा गहरा सांस लीजिए और लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए कम बैक, ठीक है। दोबारा से करेंगे, लंबा गहरा सांस लेते हुए और लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए कम बैक, ठीक है। फिर से गहरा लंबा सांस लेंगे एंड कम बैक। इसके बीच बीच में हमने आसन, बीच बीच में आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। आपने रिलैक्स करना है मार्जन आसन में, ठीक है। जो हम अभी कर रहे हैं इसे मार्जन आसन कहते हैं। बीच में जब आप रिलैक्स करेंगे, अपने दोनों पैरों को, घुटनों को खोलते हुए, पीछे पैरों को जोड़ते हुए धीरे 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 ऐसे आगे की तरफ आएंगे और एक बार नीचे की तरफ जाएंगे। आपकी छाती, सर बिल्कुल रिलैक्स। और अगर किसी कारणवश आप अपना सर या छाती नीचे नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप कोई भी पिलो या फिर कुशन को अपनी चेस्ट के नीचे रख सकते हैं, जिससे आप रिलैक्सली आराम कर सके, जिससे आपकी बॉडी में, आपकी कमर पे पड़ने वाले प्रभाव को आप फील कर सके, ठीक है। अब हम दोबारा से ध्यान से करेंगे। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट पोजीशन पे। कम बैक लाइक दिस, वापस आ जाइए अपनी पोजीशन पे। अब हमने अपने चेस्ट को यहाँ पे वर्क करना है। सबसे पहले गर्दन सामने जाएगी। याद रहे, कई लोग इसमें क्या करते हैं, नीचे आते हैं और फिर नेक को ऊपर लेके जाते हैं। हमें नेक को मूवमेंट नहीं देना, नेक सामने रहेगी, नीचे जाएगी और सामने, ठीक है। याद रहे, दोबारा से लंबा गहरा सांस लीजिए, चेस्ट को बाहर निकालिए और फील करिए टेंशन को जो आपकी चेस्ट में हो रहा है एंड देन कम बैक डाउन। गहरा लंबा सांस ले और धीरे धीरे छोड़ दे। लंबा गहरा सांस ले और फिर धीरे 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 छोड़ दे। एक बार और लंबा गहरा सांस ले और धीरे 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 छोड़ दे। चलिए रिलैक्स। अब फिर से शशांक आसन में लेट जाएंगे। सभी घुटनों को खोलते हुए, आगे की तरफ झुकते हुए, सर को नीचे, चेस्ट के ऊपर प्रेशर डालते हुए, बिल्कुल रिलैक्स।
यस, जब आप इस पोजीशन में बैठेंगे तो आपका पूरा का पूरा रिलैक्सेशन लोअर बैक तक जाएगा, तो आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने आपको प्रक्रिया कराई है आज छोटे से समय में कराई है, पर अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इनके नंबर्स को, आपको कुछ फायदा पता लगेगा। जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे तब तक आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लोअर बैक में जो पेन था, ये हम लोअर बैक पेन वाले पेशेंट्स को भी कराते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट भी यही वाली एक्सरसाइजेस बताते हैं जो मैं आपको आज बता रही हूँ। This is really, really, really very good for your lower back, spinal cord and your upper back. ठीक है, अब मेरा 5वां चरण है जिसमें मैंने आपको बताना है कि जैसे कि जो कोविड पेशेंट्स रहे हैं जिन्होंने काफी ज्यादा बॉडी वीकनेस फील की है, वो अपनी बॉडी को वापस से कैसे रीजनरेट करें, उनमें कैसे वो अपने आप को वापस स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके। तो मैं आपको सबसे पहले शुरू करूंगी आपकी आर्म सेक्शन से। ठीक है, जब हम कई बार काम करते हैं तो यू फील पेन हियर बिकॉज ऑफ वीकनेस, बिकॉज ऑफ लो स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप इसको कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं, कोई भी एक दुपट्टा या बैग ले लीजिए, जिससे मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए, कोई भी एक दुपट्टा या बैग ले लीजिए। Like I have this दुपट्टा। ठीक है, तो आप इस तरह का कोई भी दुपट्टा ले लीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करें, ध्यान रहे आपने किसी भी पोजीशन में बैठना है। दिस इज नॉट अ कंपल्सरी, आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ अपनी बॉडी को बैठना है और रिलैक्स रखना है और अपने हाथों को थोड़ा सा अपने शोल्डर से ब्रॉड रखना है। लंबा गहरा सांस लेना है, ये आपके आर्म स्ट्रेंथनिंग, और जिनको सर्वाइकल या फ्रोजन शोल्डर की भी प्रॉब्लम है वो भी इससे रिलीफ होती है। आपके आर्म्स में बहुत स्ट्रेंथ आती है। यू कैन डू दिस एक्सरसाइज in a day 4 to 5 times. Okay, ऐसे स्ट्रेंथ खींचिए, लंबा गहरा सांस लेंगे और अपने बाजुओं को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। गर्दन पे कोई प्रेशर नहीं, गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़े, लंबा गहरा सांस लेते हुए कम बैक। ठीक है, अब कंधे पे तो आपका शोल्डर बोन है, आंख है और सॉकेट है, बॉल सॉकेट है, उसको इफेक्ट को फील करें। ठीक है, लंबा गहरा सांस ले, फील करें, धीरे 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 एक्सहेल करें, रिलैक्स करें। फिर से एक बार करेंगे, गहरा लंबा सांस ले, एक्सहेल करें। ठीक है, ये आप बैठे बैठे चेयर पे, टेबल पे, बेड पे, टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करने के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, अब ध्यान से देखिए, मैं आपको साइड से बताती हूँ, साइड व्यू दिखा रही हूँ। क्या करें आप, आपने अपने हाथों को ऐसे लेके जाना था पीछे, थोड़ा सा क्लोजली पकड़ ले। ठीक है, पीछे की तरफ से मैंने अपने एल्बो को मोड़ा और ऐसे करके खींचना है पीछे। Feel the stretch in your arm, okay, and then come back. Same with other hand, पीछे की तरफ खींचना है अपनी बाजू को और पीछे। गर्दन पे कोई स्ट्रेच नहीं, गर्दन को रिलैक्स रहने दे, सामने एक पॉइंट, कम बैक। एक और लंबा गहरा सांस लेते हुए खींचिए, कम बैक। ये एक्सरसाइजेस आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि मुझे स्पेशल टाइम निकालना है, बैठना है, करना है। तो आप ये कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। दिस इज रियली गुड फॉर योर दिस पोर्शन। ओके, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ जिसमें आप लोग कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा वर्क किया और हम लोग की बहुत टाइट फील हो रहा है, लोअर बैक में बहुत पेन है, तो हाउ टू रिलैक्स दैट। ठीक है ना,
और बेड पे लेटे लेटे कई पेशेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा अभी कोविड से उभर नहीं पा रहे हैं, वो लोग बैठे बैठे थक जाते हैं, लेटे लेटे थक जाते हैं, तो दे नीड सम दीस टाइप्स ऑफ पोजेस। इसे कहते हैं हम सर्पगति, ठीक है, इसे हम कहते हैं सर्पगति। पेट के बल लेट जाएंगे, मैं थोड़ा तिरछे से बताऊंगी ताकि आप मेरी पोजीशन को अच्छे से देख सकें। जो मेरे पीछे पैर हैं उनको बिल्कुल सीधे रखना है, ऐसे सर्प की पूंछ की तरह, ठीक है। तो आप मेरे पैर देख पा रहे हैं, मेरे पैरों को बिल्कुल जोड़ा हुआ है, मैंने सीधे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले, जैसे छोटा बच्चा टीवी देखते हुए ऐसे बैठ जाता है, ऐसे बैठ जाइए, ठीक है। आपने अब क्या करना है, ये जुड़ा रहेगा और चिन यहाँ, ठीक है। ये नहीं कि हाथ ऐसे है या बहुत अंदर है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, गहरा लंबा सांस लेना है और सर्प की तरह चलना शुरू करना है, ठीक है, धीरे धीरे, बहुत धीरे। अब आप अपनी जहां तक आप इसे एक्सटेंड कर सकें ले गए। अब आपने फील करना है, जो नेक के पीछे पड़ रहा है प्रभाव, उसे फील करिए और फिर धीरे 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 इसे वापस लेके आएंगे, ठीक है। इसी तरह से इस गति को धीरे धीरे करते रहेंगे और रोक के रखेंगे। स्ट्रेस जो पड़ रहा है नेक के पीछे उसे फील करें। और हाँ, ध्यान रहे ये एक्सरसाइज थायराइड पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। जो अपने मैं आपके नेक के साथ साथ इसमें आपके नेक के सामने आपके गर्दन पे भी जो प्रभाव पड़ रहा है, तो आप ध्यान रखें ये थायराइड ग्लैंड को भी बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करती है, जिससे थायराइड पेशेंट्स अगर इसे कंटिन्यू करें दे डेफिनेटली गेट बेनिफिट। ओके, तो मैंने आपको जो ये एक्सरसाइज बताई, ये आपको कभी भी आप टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। खींचिए, रोकिए और फिर वापस आते हैं, ठीक है। ये थी आपकी रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस, कुछ आर्म्स की, कुछ शोल्डर्स की। एक एक्सरसाइज और बताना चाहती हूँ, आई नो टाइम इज नॉट विद अस। आपको लेग्स की रिलैक्सिंग एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, जो आप कभी भी बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको बैठना है, पंजों को खींचना है आगे की तरफ, कमर सीधी रहेगी बिल्कुल। ये हमारा बहुत अच्छा लेग्स का सूक्ष्म व्यायाम है, पंजे पे खींचते हुए अपनी तरफ। तो जो आपको काफ की तरफ और थाइस की तरफ प्रभाव पड़ रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, उसे फील करिए। आगे करेंगे तो आगे की तरफ पड़ेगा, पीछे करेंगे तो नीचे की तरफ पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Then you rotate 1 2 3 and 4 and reverse 1 2 3 and 4. This is your legs relaxing. अब आप सभी अपने अपने स्थान पे प्लीज आ जाइए। जो मैंने आज आपको 5 चरण बताए हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, प्रणव उच्चारण को आप करें, सुबह और शाम करें, आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। आपकी मन की इंद्रियां बिल्कुल, जो भी आपको स्ट्रेस या आपने बहुत लोड यूज किया है, वर्क किया है, वो रिलैक्स कर देगा आपको। और जो मैंने आज आपको कपालभाति प्राणायाम वेरिएशंस में कराया है, डेफिनेटली आपका जो नेसर पासेज है, ये पासेज एरिया है, म्यूकस बनने का एरिया है, उसमें म्यूकस को बनने ही नहीं देगा वो। तो हम ऐसी प्रॉब्लम में जाएंगे ही नहीं जब म्यूकस बनेगा ही नहीं। जब आप स्ट्रॉक छोड़ोगे तो म्यूकस क्लियर हो जाएगा इस एरिया से, आपके जो पैसेज एरिया से वो क्लीन कर देगा। और उसके बाद मैंने आपको कुछ लंग स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस बताई हैं। तो जो आपको मैंने 2 से 3 सूक्ष्म एक्सरसाइजेस बताई हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बेड पे, चेयर पे, टेबल पे, खड़े खड़े कहीं भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग करनी है, ब्रीदिंग करनी है। उसके बाद मैंने आपको बैक को लेकर बताया है, जो आप वर्कआउट कर रहे हैं, पूरा दिन लैपटॉप पे बैठ रहे हैं, काम करने से कोई भी, अगर आप और एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो डू दिस एक्सरसाइजेस, डेफिनेटली यू गेट बेनिफिट। अब कुछ आपको स्ट्रेंथ के लिए बताया है, दैट इज गुड फॉर योर पोस्ट कोविड पेशेंट्स भी इन्हें कर सकते हैं, बहुत रिलैक्सिंग है। अब मैं अपने सेशन को ओवर करती हूँ। आंखें बंद करके एक बार बैठ जाइए सभी, डीप इनहेल करेंगे
गहरा लंबा सांस लेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। 3 ओम के उच्चारण के साथ हम अपना सेशन, आज का दिन, आज का सेशन समाप्त करते हैं। लंबा गहरा सांस लें और अपने मन में, अपने विचारों में लाएं। आप बिल्कुल स्वस्थ फील कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं। डीप इनहेल और स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस लें। फिर से गहरा लंबा सांस लें। अपने मन में स्वास्थ्य कामना करते हुए, अपने आप को स्वस्थ फील करते हुए अपने पाम को रब करें, अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद करें और उन्हें प्रार्थना करें और उनको धन्यवाद दें। आपको इतनी स्वस्थ जीवन, हेल्दी बॉडी, स्ट्रॉन्ग ब्रेन देने के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए अपने भगवान को स्वस्थ थैंक्स करें, शुक्रिया करें। आंखों पे रखें और इस गरम गरम प्रभाव को अपनी आंखों पे लगाते हुए रिलैक्स करें अपने आप को। बिल्कुल अपनी आंखों को, ब्रेन को रिलैक्स कर दें। लंबा गहरा सांस लेते हुए धीरे 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 अपनी आंखों को खोल दें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप सब स्वस्थ रहें, हमेशा यही कामना करती हूँ आप सभी से। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू वंदना मैम। We hope that everybody practiced along with Miss Gagandeep Kaur and would they continue to practice these yogas and bring it to your life. So here we close our session. Wish you a very happy life. Thank you.